Yes, good afternoon, everyone. So, बच्चे, today we are going to revise chapter 3, safety and first aid. So, I will ask you some questions related to this chapter, okay, and you will give your answers in the chat box. And anybody who knows the answer, they will raise their hands also, okay. And you will send your messages directly to me, ठीक है? डायरेक्ट चैट पे मैसेजेस करोगे आप, एवरीवन चैट पे नहीं करोगे. So change the setting. Okay, let's start without wasting any time. The first question is, what is first aid and its purpose? First, I would like to ask, what is first aid? Raise your hands. Yes, Bhumika. Unmute yourself. Ma'am, first aid means ma'am, first aid means first help. First help, okay. Can you elaborate more? मैम हम इंजर्ड पर्सन को इसलिए फर्स्ट एड करते हैं क्योंकि उसकी लाइफ सेव करने के लिए. Save life, okay. That's the purpose. But पहले जो first aid है उसको थोड़ा सा explain करो और. मैम फर्स्ट एड हम फर्स्ट मैम पॉइंट हम फर्स्ट एड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जैसे हमें किसी पर्सन को डॉक्टर से पहले हम उसको खुद की हेल्प देते हैं तो मैम उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं. Okay, okay. एंड मैम Okay, Bhumika. It's good. At least you know the concept. So the basic concept about first aid word means help. Okay, so first aid is the first help that we give to any injured person. ठीक है, कोई person कोई accident किसी का हो जाता है, ओके, तो हम उसको जो फर्स्ट हेल्प करते देते हैं उसकी लाइफ सेव करने के लिए बिफोर द अराइवल ऑफ एनी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड. ओके, सो इट इज द इमीडिएट मीन्स उसी टाइम, ठीक है, एट दैट मोमेंट given to an injured person before the arrival of any medical help. Okay, so now what is the purpose of first aid? Misbah, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, the purpose of the first aid is to save the life of the injured person. Yes. Anything else? To save the life of victim. Okay, victim, injured person, same thing. Okay. Anything else? चैट बॉक्स में भी किसी ने कुछ खास लिखा नहीं इसके बारे में. सेव लाइफ तो लिख ही रहे हो आप, और कुछ नहीं लिख रहे हो. किसी को नहीं बताई दिस. ओके, लेट मी. yourself to prevent further damage. वो क्या, देखो अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, चोट तो उसको लगी है, अगर उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी तो उसकी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, उसकी बॉडी में और बहुत सारे उसके जो ऑर्गन से माल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो फर्दर डैमेज होता है आफ्टर द एक्सीडेंट उसको उससे बचाने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज टू हेल्प रिकवरी. रिकवरी इज ठीक होना. ठीक है, बीमार हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गया, उससे ठीक होना. तो कई बार तो कुछ छोटे छोटे माइनर एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट एड देना ही इसमें सफिशिएंट होता है. ओके, सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ फर्स्ट एड. राइट, concept is clear to all? Okay,
My next question is, what should be done in case of a gas leak? Here I'm talking about cooking gas that we use in the kitchen to cook food. What should be done? Yes, first, very good. But write more, क्योंकि एक ही चीज नहीं है जो हम करेंगे, हम बहुत कुछ और भी करेंगे. यस, ठीक है गुरशान, और कुछ? यस भार्गवी, राइट. Judges, please unmute yourself. Yajat? Yajat, are you there? Yes, ma'am. What to you can be done if there is gas leak? Yes. What should be? Ma'am, yes, ma'am, I am here. Okay, speak Yajat. In the case of gas, yes, ma'am. Yes. In the case of gas leakage, we should open our doors and windows. And we should not light a matchstick nor on a switch because it can catch fire easily. Yes, good. We should open doors and windows, and we should not switch on any switch, because whenever we switch on, उसके अंदर there is a little spark, and that spark of fire can catch further fire. ठीक है, वो गैस पकड़ने से, क्योंकि गैस बहुत ही फ्लेमेबल है. ठीक है, वो उसको बस एक छोटा सा स्पार्क चाहिए बड़ी आग बनने के लिए. सेम इन द केस विथ मैच स्टिक. ओके, सो वी शुड ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज. ठीक है, स्विच नहीं ऑन करना है, कोई मैच स्टिक नहीं ऑन करनी है. ओके ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज किचन सेफ्टी. कौन से ऐसे वेज हैं और कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए व्हाइल वर्किंग इन द किचन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अपना अपना नेम लिखेंगे चैट बॉक्स में, जिन बच्चों ने ये किचन सेफ्टी की जो चीजें हैं अपने घर में अपने मम्मा के साथ डिस्कस की है. बिकॉज बेसिकली योर मदर इज द पर्सन हु वर्क्स इन किचन. मिसबा ने करी है, जसनूर ने भी करी है, भूमिका ने भी करी है. वेरी गुड. कर्ष ने भी करी है. यस, भार्गवी, मनोबल, वेरी नाइस. ओके, चलो अब अपने आंसर्स बताओ. ठीक है, भाविक ने भी करी है. भाविक सबसे पहले करता है. वेरी गुड. ओके, नाउ गिव मी योर आंसर. भवनी, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम किचन सेफ्टी में कर सकते हैं जब भी हम कभी किचन में जाते हैं, हमें सिंथेटिक या फिर नायलॉन क्लॉथ्स पहन कर नहीं जाना चाहिए. और हमें जब भी हम किसी व्हाई वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्लोथ्स? मैम हमें उन्हें नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो बहुत इजीली फायर कैच कर लेते हैं. Because they catch fire easily. Good. Anything else? मैम जब हम किसी बॉइल्ड पॉट को उठाते हैं, उससे हमने जो कपड़े पहने हैं उससे हमें नहीं उठाना चाहिए, हमें उसे किसी और पीस ऑफ क्लॉथ से उठाना चाहिए. वेरी गुड. अगर गैस के ऊपर कुछ रखा है जिसमें बहुत कुछ गरम गरम चीज है, ठीक है, उसको हमें अपने कपड़े यूज करके नहीं उठाना चाहिए, हमें सेपरेट किचन क्लॉथ रखना चाहिए, उससे उसको यूज करना चाहिए पिक करने के लिए. वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? दैट्स इट. ओके, तो चैट बॉक्स में भी 2-3 तो बहुत ज्यादा बच्चे लिख रहे हैं. भूमिका ने कुछ एक डिफरेंट भी लिखा है. यस, तनिष्का ने भी अच्छा लिखे हैं. ओके, लेट मी शो यू माय आंसर. डू नॉट यूज सिंथेटिक क्लोथ्स. सिंथेटिक क्लोथ्स यूज नहीं करने चाहिए, ना पहनने चाहिए, ना ही उनको ऐसे एज अ किचन क्लोथ यूज करना चाहिए. ओके, डू नॉट कीप कैरोसिन स्टोव्स ऑन द फ्लोर. व्हाई? बिकॉज हम उससे नॉक कर सकते हैं, हम ट्रिपिंग हो सकती है, तो वो कैरोसिन ऑयल सारा फ्लोर पे गिर सकता है. ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल.
Excuse me, Rupinder ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, ma'am. Clearly audible. Okay, ma'am. Okay, next is get all the wires checked regularly. अगर कोई क्रैक है, क्योंकि हम किचन में बहुत appliances यूज करते हैं, so immediately because that can harm. कौन अनम्यूट है? भूमिका? इट्स भारती मैम, बट मैं जैसे ही म्यूट करने लगती हूँ वो फिर अपने आप को ही कर लेती है. ओके. Yes, ma'am. Okay, my next question is safety from fire. अगर आग लगी है, फायर है, ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? Shrishti will answer. Others will write in the chat box. Shrishti will speak. गुड आफ्टरनून मैम. मैम, अगर जैसे किसी पैन में फायर लग जाती है तो हमको उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, हमको बेकिंग सोडा डालना चाहिए उसके ऊपर. बेकिंग सोडा, अगर पैन में फायर होती है तो बेकिंग सोडा डालना चाहिए. ऑयल के ऊपर तो हमें कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऑयल लाइट होता है वेट में वाटर से. आपने जो सोल्यूशन वाला हमने जब टॉपिक किया था तब भी आपको दिखाया था, ऑयल और वाटर दे नेवर मिक्स विद ईच अदर. ऑयल ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर. ओके, तो जो आग है वो तो ऑयल के ऊपर है. अगर हम उसमें पानी डालेंगे, पानी फैलेगा, उसके साथ साथ ऑयल भी फैलेगा, आग और ज्यादा बढ़ जाएगी. ओके, एनीथिंग एल्स सृष्टि? नो मैम. Okay. Okay, so let me ask from Tanishka. गुड मॉर्निंग मैम. Good afternoon. मैम, अगर हमारे फायर लग जाती है कहीं पर तो हमें रोल करना चाहिए ग्राउंड पे, और हमें अगर किसी और की लगी तो हमें रग या फिर ब्लैंकेट से उस इंजर्ड पर्सन को कवर करना चाहिए. Tanishka, now tell me why do we do these things? हम रोल क्यों करते हैं? ब्लैंकेट और रग से क्यों कवर करते हैं? What is the reason behind it? टू सेव द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन. हम सेव कर रहे हैं, बट इससे होता क्या है? फायर कैसे बुझ जाती है ऐसे करने से? मैम, हमें जो एयर होती है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से फायर बुझ जाती है. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे चैट बॉक्स में भी आंसर दिए हैं, एंजल ने और नवदीप ने. वेरी गुड, बिकॉज एयर इज द थिंग दैट कॉजेज फायर. एयर में ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन इज द गैस दैट सपोर्ट्स बर्निंग. ओके, तो अगर हम रोल करते हैं जल्दी जल्दी ग्राउंड पे आग लगने पे और पर्सन को किसी ब्लैंकेट से कवर करते हैं, दैट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. इट मीन्स दैट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फायर नहीं होगी, वो बुझ जाएगी अपने आप. ओके, वेरी गुड. सो लेट मी टेल यू मैंने क्या क्या लिखे हैं पॉइंट्स. कट ऑफ द एयर सप्लाई. ठीक है, सबसे पहले क्या हमें करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए हम कैसे कट कर सकते हैं. या तो हम पानी से कट करेंगे या हम ब्लैंकेट से, बट वाटर कैन नॉट बी यूज इन ऑल काइंड्स ऑफ फायर, राइट? So what can be done? We can use fire extinguisher. Okay? जो फायर इलेक्ट्रिसिटी से लग जाती है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स की वजह से लगती है. ओके, व्हाई? Who will answer why? इलेक्ट्रिसिटी से जो फायर लगती है उसमें भी हमें फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज करना चाहिए? Why can't we use water to put out such kind of fires? Bhavik, would you like to speak? मैम, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल कॉज ऑफ फायर पे पानी डालते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं. No, Bhavik.
This is the actually reason for the fire that are caused due to oil. इलेक्ट्रिसिटी का कोई और रीजन है नवदीप? यस मैम, जो हमें यस मैम जैसे जब भी इलेक्ट्रिसिटी से फायर होती है तो हमें उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए डालना चाहिए क्योंकि वो एयर सप्लाई को कट कर देता है और फिर उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, चलो मैं आपको बताती हूँ। मैम मुझे याद आ गया हाँ जी बताओ। मैम, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल क्रॉस फायर पे पानी डालते हैं तो हमको ही उल्टा करंट लगेगा। यस, करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। व्हाई? बिकॉज वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी तक पहुंचेगी अगर हम उसमें पानी डालेंगे। सो वी शुड यूज फायर एक्सटिंग्विशर, राइट? Okay, so I have written the emergency fire brigade number, which is 101, 101. Okay, this is the emergency helpline number of fire brigade. ये आपको याद रखना है। Next, Excuse me, ma'am. for burns, yes, शीशा। मैम यहाँ पे अगर आग लग जाती है हमको एल्डर्स को भी बुलाना चाहिए। बच्चे अगर बहुत बड़ी लेवल पे फायर लगी है जो हम कंट्रोल डेफिनेटली नहीं कर सकते, देन वी शुड सर्टेनली कॉल फायर ब्रिगेड। और मैम अगर छोटी होती है तो एल्डर्स को। छोटी होती है तो मतलब अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे ही डेफिनेटली, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, बर्न्स हो गए हैं, व्हाट कैन बी डन इन दैट केस? यस एंजल, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सबसे कॉमन स्टेप होता है पहले उसको वाटर से वॉश करना चाहिए मैम, Yes. क्योंकि वाटर अफेक्टेड एरिया पे ब्लिस्टर फॉर बीइंग फॉर्म्ड होता है। तो मैम a major wound can be result in blisters also। मैम पहले उसके ऊपर हमें बैंडेज करनी चाहिए, अगर ब्लीडिंग फिर भी ना रुके उसको प्रेस करना चाहिए कॉटन से। और Surburn, in case of surburn, we should take the injured person to the doctor immediately. Yes, it's severe burns. Okay, very nice. तो एंजल ने सारे बता दिए हैं। So for cold water, बर्न हो गए हैं, हमें पानी डालना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पानी से थोड़ा ठंडा मिलेगा तो बर्न्स में हमें क्योर होगा, ठीक है? क्योर होगा। तो अगर ज्यादा बर्न्स हो जाए तो उससे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स को पहली बात तो आपको टच नहीं करना है क्योंकि वो बर्स्ट हो सकते हैं। ओके, उनको क्लीन क्लॉथ के साथ या फिर बैंडेज के साथ कवर करना चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर केमिकल्स के साथ बर्न्स हुए हैं तो उसको पहले तो बहुत ज्यादा पानी के साथ वॉश करना चाहिए ताकि केमिकल स्किन से बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव हो जाए, राइट? और डेफिनेटली हमें उसमें बैंडेज तो करनी ही चाहिए। अगर बर्न्स बहुत सीवियर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी शुड डेफिनेटली सर्टेनली टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर। ओके, जस्ट जो होते हैं जिसको हम कहते हैं ना छाले हो गए हैं, वो ब्लिस्टर्स होते हैं। बहुत वुंड हो जाते हैं, जब भी कुछ गर्म लग जाता है छाले हो जाते हैं, वो ब्लिस्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट एड फॉर कट और वुंड। कट लग गया है किसी चीज के साथ, तो उस केस में क्या करना चाहिए? यस, नवदीप ने फर्स्ट स्टेप बता दिया है। मैम अब बताएंगे शुभांशु। मैम शुभांशु बताएगा। प्रेस मैम पहले उसको कोल्ड वाटर में डालना चाहिए, फिर इसको कॉटन से प्रेस करना चाहिए, फिर एंटीसेप्टिक लगानी चाहिए। अगर ज्यादा डीप कट है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सब कुछ बता दिया। ओके, सो इन केस ऑफ कट से ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी, ब्लड बाहर आएगा, ठीक है? तो कट हो या फिर वुंड हो, सबसे पहले हमें उसको पानी से साफ करना चाहिए, ठीक है?
क्योंकि अगर हमारी स्किन में लग जाता है, हमारी स्किन ओपन हो जाती है, तो बहुत सारी जर्म्स और बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, राइट। तो इसलिए एंटीसेप्टिक यूज करना चाहिए। एंटीसेप्टिक की एग्जांपल दो, कोई कोई एंटीसेप्टिक लिक्विड जो आपको पता हो। मैम डेटॉल। यस, लिखना है बट चैट बॉक्स में, डेटॉल एंड सैवलॉन, राइट। ओके, तो एंटीसेप्टिक यूज करनी चाहिए, बैंडेज करनी चाहिए उस पे अच्छे से, ठीक है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए टॉर्निकेट यूज करनी चाहिए, ठीक है। टॉर्निकेट क्या होती है, वो विल एक्सप्लेन, Jasnoor will explain. Jasnoor, what is tourniquet? Ma'am, I don't know. You don't know? You should know. टोर्निकेट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप कभी आपका ब्लड सैंपल दिया आपने जसनूर? आपने कभी जैसे HB काउंट करवाने के लिए या फिर आपका ब्लड ग्रुप पता करने के लिए आपने ब्लड सैंपल दिया है? मैम मैम नो, कभी भी नहीं दिया ब्लड सैंपल? आपको आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता? मैम पता है मैम, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, तो ब्लड सैंपल तो दिया होगा। एनी हाउ, आप फ्यूचर में जब भी जाओगे ना, कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ी ब्लड सैंपल देने की, तो आप देखोगे ब्लड सैंपल अगर वो आप आर्म से लेते हैं, तो आपके आर्म पे वो एक बैंड लगाएंगे बहुत टाइट सा, वो टोर्निकेट होती है, ठीक है। तो कट के केस में हम टोर्निकेट क्यों लगाते हैं? ताकि ब्लीडिंग कम हो, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी अगर हम वहां से टाइट कर देंगे, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ब्लीडिंग कम होगी, हमारा ब्लड लॉस कम होगा, राइट। ओके, मैंने वैसे आपको पिक्चर्स दिखाई थी, अगर आपको याद हो। What should be done in case of animal bite? श्रुति, मैम आई एम यजत। मैम आई एम यजत। ये यजत है, तो फिर मैं सोच रही श्रुति तो कोई स्टूडेंट है नहीं हमारे पास। मैम मैंने अपने मम्मी फोन से ज्वाइन किया, मैं रीनेम करना भूल गया। ओके, मैम एनिमल बाइट मैम फॉर स्नेक डॉग और कैट। वेट, आपने आंसर कर दिया था ना, मैं किसी और से पूछती हूँ। गुरशान, मैम रबीज होती है जब कोई मैम डॉग और कैट हमें गुरशान, बाइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एनिमल बाइट बताया है, ये तो बताया नहीं कौन सा एनिमल की बाइट है, तो आप स्पेसिफाई करो ना कि किससे रेबीज होता है ना। मैम डॉग और कैट। यस, डॉग और कैट बाइट से रेबीज हो सकता है, तो क्या करना चाहिए? के लिए क्या करना चाहिए? मैम हमें वॉश करना चाहिए उसको। यस, मैम और वॉश कर, मैम और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाना। गुरशान, कौन बेटे you shouldn't take help from your parents. Yes, Anupam, please continue. यस मैम, यस गुरशान। मैम हमें बैंडेज लगानी चाहिए। हाँ, बैंडेज तो हम वो तो डॉक्टर लगा देंगे बाइट के केस में, तो ट्रीटमेंट पूरी है ना। तो कौन सी ट्रीटमेंट? मैम कहना नहीं, जिससे पूछा है पहले वो आंसर दे रही। ओके जपनीत, अनम्यूट योरसेल्फ। जपनीत, मैम वी शुड यूज टॉनिकेट, जिससे मैम हमारे जो ब्लड जो स्नेक बाइट या फिर जो भी है ना मैम, वो हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचे नहीं, हमारे उधर तक पहुंचे नहीं। सो मैम उसके बाद मैम हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। एंड मैम हमें जितना जल्दी हो सके मैम हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यस, वेरी गुड। तो टोर्निकेट डेफिनेटली यूज करनी चाहिए, क्योंकि जब स्नेक बाइट होती है, ठीक है, पॉइजन इंजेक्ट करता है स्नेक हमारी बॉडी में, सो दैट पॉइजन कैन रीच टू अदर ऑर्गन्स आल्सो थ्रू ब्लड स्ट्रीम।
ठीक है, तो ब्लड का सप्लाई हमें थोड़ा रोकना है. वी कैन यूज टूर्निकेट. Okay, because that poison can affect heart and it can also affect nervous system. Okay, so snake bite के केस में पॉइजन बाहर निकालने की भी ट्राई करनी चाहिए. स्क्वीज आउट द पॉइजन. क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि पॉइजन हमारी बॉडी से बाहर आए. एंड डेफिनेटली वी शुड टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर. एंड इन केस ऑफ डॉग और कैट बाइट, we should wash the bitten area and we can apply antiseptic to prevent any further infection. Dog और cat bite से एक disease हो सकती है rabies. Rabies के जो germs हैं वो इनके saliva में होते हैं dog और cat के, and that can enter our body. So उस केस में हमें anti rabies treatment करवाना पड़ता है, कि जिसमें इंजेक्शंस होते हैं. एंटी रेबीज ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है. Now, can anybody tell me what happens in rabies? अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, उसके क्या कैसे बिहेव करता है वो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया हो? नवदीप ने बता दिया. बच्चे अपने नेम लिखो चैट बॉक्स में. ये बच्चे ने 5th रेड पहले लिख दिया है, नेम पता नहीं इसका. हेवन अनम्यूट योरसेल्फ. हेवन. मैम यस हेवन बताओ. मैम अगर किसी पर्सन को रेबीज हो लगती है तो उसको हाइड्रोफोबिया हो सकता है. यस, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? मैम उसमें फियर ऑफ वाटर हो जाता है. फियर ऑफ वाटर. यस, और कुछ होता है? मैम हाइट से डर लगता है. हाइट से तो नहीं लगता, पानी से ही लगता है. इट कैन अफेक्ट नर्वस सिस्टम, जो हाइड्रोफोबिया फर्दर डेवलप करता है, और पर्सन को सलिवेशन होती है, उसके मुंह से पानी बहुत ज्यादा गिरता है. सो नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर. पहली बार मुझे बताओगे व्हाट इज फ्रैक्चर? किरणदीप, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्चर? फ्रैक्चर. गुड मॉर्निंग मैम. फ्रैक्चर वो होता है जहाँ पर जैसे कोई बॉडी का पार्ट की बोन है जो हिल जाती है, और फिर जब हम उसको मूव करते हैं फिर हमारा वो पार्ट बहुत ज्यादा दर्द करता है. वो टूट जाती है, बोन टूट जाती है, क्रैक आ जाता है बोन में. ठीक है, सो फ्रैक्चर इज अ क्रैक इन बोन. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन. एंड व्हाट कैन बी डन? हितेशी. यस, गुड मॉर्निंग मैम. मैम अगर हमें फ्रैक्चर हुआ है मैम, वो आता है मैम स्प्रेन. मैम हमें स्प्रेन यूज करना चाहिए मैम, और स्लिंग. स्लिंग और स्विंग नहीं, स्लिंग. मैम मैंने स्लिंग ही कहा था. स्लिंग में क्या होता है? स्लिंग कैसी होती है देखने में? मैम मैम वो हमारे जहाँ भी मैम फ्रैक्चर होता है मैम, वो सपोर्ट करती है हमारे बोन को, हम हेल्प करती है. स्लिंग देखने में कैसी होती है मैम? क्या फिर से पूछ रहा? स्लिंग देखने में कैसी होती है, वो कैसे वर्क करती है? वो जैसे कि जिस स्टूडेंट को पता है वो अपना नेम बता दे चैट बॉक्स में, मैं उससे पूछती हूँ. भाविक. मैम जब किसी के गले में मैम गल पड़ जाता है तब जो लगाते हैं मैम उसको स्लिंग बोलते हैं. गले में पड़ जाता है?
ओके जस्ट जो गले में लगाते हैं। हाँ गले में तो लगाते हैं, ठीक है जस्ट जो मैम जो स्लिंग होता है मैम, वो हमें सपोर्ट देता है हाँ वो देखने में कैसी होती है, मैम। करती है। भार्गवी, मैम कहना है भार्गवी मैम जो सी स्लिंग होती है मैम, उसको मैम ऐसे नेक से लगा के मैम जब आर्म पे जो सा होता है मैम वो वैसे मैम होती है। नेक के अराउंड लगाते हैं, उस पे आर्म रेस्ट करती है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ भी हो सकता है, पीस क्लॉथ से भी हम स्लिंग बना सकते हैं। अदरवाइज अब तो मार्केट में बैंडेज प्रॉपर मिलती है स्लिंग, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ ट्रायंगुलर piece of cloth that rests fractured arm, okay, and it is looped around neck, okay। अब आप मुझे बताओ स्प्लिंट कैसे होती है, स्प्लिंट का बताओ। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी श्रीषा, जल्दी। मैम मेरे को डाउट है, जो केरोसिन एंड एक ट्रू फॉल्स है, केरोसिन एंड पेट्रोल आर हैवियर देन वाटर। ये फॉल्स है क्योंकि ये लाइट होते हैं, कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल ये लाइट होते हैं वेट में, ठीक है। यस और मैम जो फर्स्ट एड फॉर बर्न्स है, यहाँ पे लिखा है a major burn can result in blister, never praying the blister। मैम इस ये वाली लाइन का क्या मीनिंग है? बर्न्स है, बड़े लेवल पे बर्न्स होते हैं, उससे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लिस्टर्स को हमें फोड़ना नहीं चाहिए, प्रिक होता है उसको छेड़ना, ऊपर से छीलना। मैम ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? छाला। यस भूमिका बताओ स्प्लिंट कैसी होती है, कैसे काम करती है। मैम जो स्प्लिंट होती है मैम वो यहाँ पर हमारे जहाँ पर फ्रैक्चर वो होते हैं मैम वो लगी होते हैं मैम, लाइक वो ना हमारे ओनली हाथ पर ही लगी होती है मैम। जो स्लिंग होती है मैम वो हमारी पूरी नेक से राउंड जाती है। और मैम जो स्प्लिंट, यस मैम जो स्प्लिंट होती है मैम वो हमारे हाथ पे मतलब हमें सपोर्ट करने के लिए रहती है। स्प्लिंट होती है, ये रेक्टेंगुलर पीसीस ऑफ वुड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आर्म के ऊपर और नीचे रख देते हैं ताकि वो बिल्कुल सीधी रहे, ठीक है, और रेस्ट करे। यस स्प्रेन, पहले बताओ व्हाट इज स्प्रेन, ये बताएंगे। सर्च सर्च व्हाट इज स्प्रेन, जल्दी बताओ, वी हैव ओनली 4 मिनट्स। मैम स्प्रेन मीन मैम सूज जाना। वो तो स्वेलिंग होती है, सूज जाना। मैम कैन आई टेल? हाँ जी जसनूर बताओ। मैम स्प्रेन होती है जो हमारे हाथ में मोच आ जाती है मैम। यस जो मोच आ जाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्विस्ट इन और रिस्ट। रिस्ट होता है हमारा हाथ की जो ये जो कलाई वाला एरिया है, हाथ और आर्म के बीच वाला, दिस इज रिस्ट, जहाँ पे हम वॉच लगाते हैं, रिस्ट वॉच। एंकल होती है जहाँ पे हम पायल पहनते हैं, ठीक है, दैट इज एंकल। और रिस्ट और एंकल में जब ट्विस्ट आ जाता है, जिसको मोच आना बोलते हैं, दैट इज स्प्रेन। और स्प्रेन में क्या हम करते हैं, फर्स्ट एड क्या देते हैं। यस कौन बताएगा अब ये। एक्सक्यूज मी रुपिंदर मैम। Yes, Anu ma'am. Ma'am, have you pasted the link of attendance form? Yes, Bhargavi. Speak.
जस्ट योर फर्स्ट एड फॉर स्पेन पूछ रही हूँ। भार्गवी। मैम हमें इलास्टिक बैंडेज और आइस पैक यूज करना चाहिए। श्रीशा। श्रीशा स्पीक। मैम स्प्रेन को it can be soaked in warm water 2 or 3 a day. कोई भी बोल सकता है। स्प्रेन्ड एरिया को इलास्टिक बैंडेज लगानी चाहिए, ठीक है, ताकि मसल्स रिलैक्स हो। फर्स्ट 2 डेज तक आइस पैक लगाना चाहिए ताकि वहां पे ब्लड सप्लाई रुके। जब हम ठंडा कर देंगे उस एरिया को, ब्लड सप्लाई वहां पे कम होगी, तो उससे स्वेलिंग नहीं होगी, ठीक है। स्वेलिंग जब बहुत सारा खून वहां पे इकट्ठा हो जाता है, ओके। एंड सेकेंड डे के बाद उसको वार्म वाटर में रखना चाहिए उस एरिया को, ठीक है, जिससे वहां पे ब्लड सप्लाई फिर आएगी और जो मसल्स हैं आपके वो रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे, ओके। इसमें आपको ये भी है जो फ्रैक्चर है उसके क्या सिम्टम्स है, उसमें क्या आप लिखोगे, वो जो पार्ट है उस पे स्वेलिंग आ जाती है, पेन बहुत आता है, रेडनेस हो जाती है, डार्क हो जाता है वो एरिया, ओके। So here you have emergency number of ambulance which is 102, emergency helpline number of police station which is 101, and emergency helpline number of fire brigade is 101. Okay, so remember safety first.